प्राइवेट सेक्टर को आखिर कैसे भरोसा हो कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी डिमांड बनी रहेगी हमारा, क्योंकि अभी भी प्राइवेट सेक्टर जो है मुश्किल से 70 से 75% उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। आमतौर पे आप ही लोग सजेस्ट करते हैं कि जब तक कि 80% प्लस ना हो तब तक वो लोग ग्रीन फील्ड या एक्सपेंशन नहीं करते हैं। तो वो डिमांड कैसे आ गई? हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि कंजम्पशन ग्रोथ देखने को मिला है, करीब 61.5% जीडीपी का पार कर चुका कंजम्पशन ग्रोथ, ये एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। लेकिन क्या ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए काफी है, माधवी अरोड़ा? We need to see how sustained is that, because abhi thoda kya hai, consumption story is a little noisy. We do understand that there have been measures by the government in the last 6-9 months which were basically tax oriented, and of course GST was a big push towards that. बहुत uneven demand, largely consumer durable sectors में कुछ बड़ा excitement नहीं दिखा है, बहुत auto sector oriented डिमांड क्रिएशन हुआ है पोस्ट जीएसटी. सो वी स्टिल डोंट नो कितना सस्टेन रहेगा ये, बिकॉज अभी ये क्वार्टर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर. लास्ट क्वार्टर अगेन वाज अ फेस्टिव सीजन का एक्सटेंशन, सो ऑल ऑफ दैट also sort of made it a little noisy for us to really decipher a trend out of. अभी मेरे ख्याल से the way income effects are taking a अर्बन इकोनॉमी में अभी भी स्ट्रगल रहेगा. सी डिस्पाइट ऑल द रेट का, ऑल द टैक्स incidents cuts that they have done, we still remain a very high tax economy compared to our emerging market peers, and that itself is basically a massive blow on our disposable income compared to our peers. And given that disposable income in the urban sector has been steadily coming off, especially in the last 1 or 2 years, and especially again in the upper middle income category, to be more specific, I think the consumption story could remain patchy in the coming months to go. So we'll see how that pans out. But I think it's, as I said, it's not just consumption; it is also the investment side of it. Also the investment side of the rest of the world, which basically is again the supply side aspects of the rest of the world, which is also weighing on our private sector in general. They've been sitting on cash. They've been sort of very focused on their managing their shareholders' economy rather than actually reinvesting in India, because kahin na kahin yahan ka, you don't have that much strength on the India growth story. And more importantly, as I said, the surpluses in the world order, especially led by China, is also somewhere impeding decision making for domestic investors. One, and two, cost of capital also is relatively expensive. India का रेट कट करने के बावजूद भी you've not really seen either the sovereign rates come off nor the corporate bond yields actually come up. In fact, it is actually steepened in terms of the curves. तो आपका cost of borrowing effectively कम नहीं हुआ है. और आगे जाके भी मतलब whatever gotten best out of this rate cutting cycle has really played out, and we've not really gotten much out of that. And as of now, given the way China so-called anti-involution is still going into a little bit of a hazy state, my sense is that we are going to see dumping by China in the world order, which again will depress industrial capacity to that extent. So मेरे ख्याल से near term में वो doesn't augur well for us, nor is global uncertainty, which is a very big variable for anyone who's doing NPVs of his investment for a 10-year period. ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, प्लस आपने सही कहा कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा, जहां ट्रंप जैसे लोगों का बयान आता है कि आप वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा, यहां पैसा लगाएंगे तो यहां आपको रिलीफ मिलेंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं अभी तक जब तक सेटल नहीं हो जाती तब तक हर कोई पैसा लेकर बैठा हुआ कि हमें करना क्या है। स्थिति तो यहाँ तक आ गई, कई लोगों को प्लान थे लेकिन प्लान को भी होल्ड पर डाल दिया कि हमें वहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, रुक के रहना है। ग्लोबल सिचुएशन कैसे बदलता है इसको देखना। रजनी सिन्हा, इसको आप कैसे देख रही हैं? और साथ ही साथ एक सवाल और आपसे कि आपके हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे में कौन सी ऐसी बातें दिखी जिसको तुरंत लागू कर देना चाहिए? मुझे लगता है, पहले मैं आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर करूंगी। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, गवर्नमेंट लास्ट ईयर भी बजट में और इको सर्वे में डीरेगुलेशन के बारे में बात हुई थी,
और काफी कुछ हुआ है लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, पर मुझे लगता है वो आगे चल के भी डीरेगुलेशन पे बहुत फोकस होना चाहिए। अगर हम वो रेगुलेटरी हर्डल्स को अगर हम ईज करते हैं, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं, वो उससे दो फायदा होगा ना। नॉट जस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वो पिकअप होगा, क्योंकि एक हमारा कंसर्न वो भी है कि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो अगर हम रेगुलेटरी हर्डल्स रिड्यूस करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करते हैं, तो एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होगा। दूसरा बहुत जरूरी है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करें, और उसमें भी ये हेल्प करेगा अगर हम ये रेगुलेटरी हर्डल्स को रिड्यूस करते हैं। तो आई थिंक ये इशू है जिसपे ऑलरेडी गवर्नमेंट काफी फोकस्ड है, और मुझे लगता है उसमें बहुत कुछ और स्कोप है करने का। तो इसीलिए उस एरिया पे वर्क करना चाहिए। आपका पहला सवाल क्या था, मैं भूल गई। कि जो अभी माधवी कह भी रहे थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है इस एनवायरनमेंट में, आप भी मानती हैं ऐसा है? हाँ, बिल्कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल दिख रहा है हमें, लेकिन जैसा कि माधवी ने कहा, एक्सेस कैपेसिटी है चाइना में, तो इट्स नॉट इजी। इंडिया में कंजम्पशन अगर हम देखें तो उस रेट से नहीं ग्रो कर रहा है जैसा कि हम चाहते हैं। तो उसके लिए मैं कहूंगी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि थोड़ा लॉन्गर टर्म है, उसका कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, और वो है कि हम गवर्नमेंट शुड सी कि कैसे हम हाउस होल्ड इनकम को इंक्रीज करें। क्योंकि अगर आप देखिए ग्लोबल सिचुएशन वो तो अनसर्टन रहने वाला है, उसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, कि जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऐसा नहीं कि इस साल या नेक्स्ट ईयर, हमें पता नहीं, आगे विजिबिलिटी नहीं है कि कब तक ये अनसर्टनिटी रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो हमारा डोमेस्टिक फंडामेंटल्स है उसको काफी उस पर फोकस करें और उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर मैं बात करूं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज करें। अगर हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होता है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है, तो इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। और हाउस होल्ड इनकम इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज ग्रो करने के करेगा। लिए अगेन, हाँ, और उसके लिए अगेन कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। अगर हमें हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज करना है, तो हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि हम कैसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें, कैसे इनकम, हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हो, उसके कारण जॉब्स क्रिएट हो, वेजेस इंक्रीज हो। तो ये सब एस्पेक्ट पे वर्क करना पड़ेगा। चूंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं आप लोगों की तरह, तो मैं तो कहूंगा हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज करना तो इनकम टैक्स घटा दीजिए। हालांकि शुभ जी ने पहले ही कहा कि नहीं है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि इनकम टैक्स घटना चाहिए। तो शुभ, आप भाई आप ही बता दीजिए कि इस बजट में इकोनॉमिक सर्वे की कौन सी छाप आप देखना चाहेंगे। आमतौर पर इकोनॉमिक सर्वे बजट से बिल्कुल अलग एक्सरसाइज होता है, लेकिन एक आध मौके पर देखने को मिला है कि जो रिकमेंडेशन इकोनॉमिक सर्वे किया है वो बजट में भी उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया है। और जिस तरीके से तालमेल अभी चल रहा है और जितने मैच्योर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं विद अनंत नागेश्वरन, तो उनकी बात सुनी भी जाए बजट में तो आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल। और ये बात सही है कि इकोनॉमिक सर्वे इज ऑलवेज अ वॉचवर्ड फॉर के भाई बजट में क्या रवैया लिया जाएगा। टैक्स का तो मैंने आपको बताया कि क्लियरली मुझे नहीं लगता है कि टैक्स का चेंज आएगा। वैसे इकोनॉमिक सर्वे में इंटरेस्टिंग चीज़ अभी रजनी जी बता रही थी कि बूस्ट देना डोमेस्टिक इनकम को। एक डेटा इकोनॉमिक सर्वे भी मैं पढ़ रहा था कि अबाउट 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी स्टेट्स के जितना इनकम सपोर्ट जा रहा है 1.7 ट्रिलियन रुपी, they reportedly account for 40 to 50% of at least half the rural population income consumption. Now that means पूरा देश का एक एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चेंज हो गया है कि गवर्नमेंट रूरल लेवल्स में जस्ट फाइनेंशियल कोई इंजीनियरिंग ना करके, कोई स्कीम्स ना लाकर, सिर्फ कैश सपोर्ट के बेसिस पे ही एक चलने का एक 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 दायरा बन गया है। एंड दिस इज क्वाइट अ डेंजरस थिंग, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अगर इस तरह से चले तो उनके लिए कैपेक्स का जो बजट का जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड एंड काफ़ी कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो हम जब कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए टू डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, मुझे नहीं लगता है विद दैट सॉर्ट ऑफ ए ह्यूज सपोर्ट जो फ्रीबीज के दे रहे हैं कि उनके पास कोई स्पेस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को सही रखे और
इन टैक्स में ना चेंज करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितने तरीके का चेंजेस ला सकते हैं, स्टेट्स को कोक्स कर सकते हैं, वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कि ये मैं इसलिए मानता हूँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास लोगों को बोल के कि भाई आप आ जाओ, मैं यहाँ पे इंसेंटिव दे रहा हूँ, इस तरह का प्रोडक्शन आप करना शुरू करो, वो दिन और समय खत्म हो चुका है। इसीलिए अदर देन जैसे मार्केट में प्राइमरी कैपिटल गेन्स टैक्स में इफ देयर इज एनी चेंज वो हो सकता है, बट अदर देन दैट एक रेसिडेंस टैक्सेशन बेस्ड टैक्सेशन के चलते कैपिटल गेन्स टैक्स में अगर बदलाव लाए सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकते हैं टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम इनटू द मार्केट, उसका दस्तूर भी है और हो भी सकता है। बट द ओनली मेजर चेंज जो गवर्नमेंट ला सकते हैं वो ये है कि टू हाउ टू मेक अ बिजनेस वर्क इजी, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ किस तरीके से कर सकते हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर डाल सकते हैं। मुझे लगता है बजट में ये एक नया स्टेप होगा। बजट में बोला ही जा रहा है, निको सर्वे में बोला जा रहा है टू टेक प्रोएक्टिव स्टैंड, एंड दैट प्रोएक्टिव स्टैंड अगर लेना है, इनफैक्ट इको सर्वे में जिक्र है चाइना का हाइनन आइलैंड का, जो एक पहले हम लोग का अभी तक था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक शहर का, अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे आर मेकिंग ऑफ अ एंटायर स्टेट। इस तरीके का जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना कर रहे हैं तो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि उस तरीके का what are the total change in terms of new industrial ideas, new investment ideas जो ला सकते हैं। frankly लक्ष्मण जी, मुझे लगता है बजट में frankly I couldn't see too many things बजट का जो इनमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि in terms of indication, but मुझे लगता है एक चीज़ जो अनंत नागेश्वरन जी ने बोला है which is a non-tax revenue, and I think that is quite possible कि गवर्नमेंट कंपनीज में इफेक्टिव कंट्रोल को अगर 26% तक उतारा जाए तो दैट बाय अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड द कंपनीज एक्ट, और ये सुझाव है बजट का, ये इको सर्वे का, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सुझाव है, क्योंकि उनका पॉइंट है कि इसके वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज में जिनके में लिमिट आ चुके हैं, होल्डिंग नहीं घटा सकते, अपना घटा नहीं सकता है, उसका एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है मार्केट में। लॉट्स ऑफ गुड स्क्रिप्ट्स कैन हिट द मार्केट, एंड कंसीडरिंग हमारे मिडिल क्लास सिर्फ मार्केट में नहीं आए शुभमन सर, मेरा मानना है कि सिर्फ मार्केट में ही नए अच्छे स्क्रिप्ट नहीं आएंगे, बल्कि सरकार जब इस तरह के डाइवेस्टमेंट करेगी, जब इस तरह के एसेट मोनेटाइजेशन करेगी, तो एक तरीके से गवर्नमेंट का जो डेट है वो भी कम होगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है भारी भरकम, वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। हालांकि एक सवाल जो मैंने आप सभी लोगों से पूछा लगभग कि ऐसी कौन सी चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में है जो आप बजट में देखना चाहेंगे, लेकिन आप में से किसी ने वो जवाब नहीं दिया जो मेरे मन में था। जाहिर तौर पर आप लोग नहीं देंगे चूंकि आप लोग अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं। मेरे हिसाब से ये था कि सबसे तुरंत सरकार को करना क्या चाहिए कि ये जो डिजिटल एडिक्शन वाला मामला है ना, उसको तो इमीडिएट इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। उसका अर्थव्यवस्था से लेना देना नहीं, लेकिन आर्थिक सर्वे में बखूबी दिखाया गया है कैसे पूरे इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है, कैसे बच्चों के हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। तो फ्रांस जैसे देशों ने इसको शुरू भी किया है। आप में से कोई इसके पक्ष में है कि नहीं? माधवी? I agree with you, because obviously, this tends to sort of rot the productivity of the young bloods, and it'll feed into the potential growth of the economy that one is talking about, right? So I think it's important that there has to be some restriction towards some digital freedom that the economy enjoys, especially in certain age segments, and I think it's a very valid, I will ask from the economic survey. बिल्कुल। डीके जोशी साहब, आप तो कह सकते हैं लोगों को कि हम जब पढ़ाई करते थे, जब हम इकोनॉमी पढ़ते थे, तो हमारे पास तो लैपटॉप भी नहीं होता होगा शायद। मुझे लगता है जब आप ग्रेजुएशन के टाइम में होंगे उतने एक्सेस नहीं होते होंगे, आप तो किताबों से पढ़ते होंगे, और आज बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन के लैपटॉप और मोबाइल और ऐप खोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कहें कि किताबों में वापस जाओ। आई थिंक इशू डिजिटल का ये हो रहा है कि आपको उसमें पढ़ाई के साथ साथ बहुत और एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज हैं जो बहुत एडिक्टिव हैं, तो वो उनको उस एडिक्शन को कैसे रोका जाए, वो इतने मतलब इट इज जो जितने भी आप नोटिस किया होगा, कोई भी आप एक बार कोई चीज को सर्च करें, आपको जब भी आप चाहे CNBC का
वो खोलें और आपको वही ऐड दिखाई देंगे बार बार। तो आई थिंक बहुत ज्यादा एआई के थ्रू और एकदम आपके माइंड के ऊपर पूरा जो आपको पसंद है वही आपको बार बार दिखाया जाएगा, तो इस तरह से एडिक्शन बन जाती है। इस एडिक्शन को इससे सर्वे ने इससे कहा है कि इस एडिक्शन से आगे जाके मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है, स्ट्रेस पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा होता है। तो इसका एक तरह से मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को पे पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट, जबकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। जितने भी टेक्निकल डिवाइसेस हैं ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही आवश्यक है। मैं खुद अपना जो डिवाइस का जो एडिक्शन है उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो बच्चों के लिए आई थिंक इट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट। पर इसकी आपके लिए भी चैलेंज है रजनी? बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि जैसा कि डीके जोशी ने कहा कि जब हम एडल्ट स्ट्रगल कर रहे हैं तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जा रहा है, और हम सब एक्चुअली अपने घर में ये फील कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे भी काफी एडिक्टेड होते जा रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस से। तो ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है, और इसे अगर हम हैंडल कर सके इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए, ये आसान नहीं होगा, पर अगर हम कर सके तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ। बता दूं कि हम लोग के यहाँ हमारे सीएनबीसी आवाज़ पे ही हम लोग कई शोज़ कर चुके हैं। कंज्यूमर अड्डा करके हमारे सहयोगी करते हैं, उस शो को होस्ट करते हैं हम लोग। कई बार इस पे अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाकर शो किए हैं। और अभी फ्रांस ने जब ये कहा कि अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों को एक्सेस नहीं दिया जाएगा, तो उसको भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे सपोर्ट करते हुए शो भी किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट निकले। और जब आर्थिक सर्वे मैंने देखा कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखाया गया, तो अपने आप पे बहुत आश्चर्य आया कि इस लेवल तक इसका नुकसान उठाना पड़ सकता। तो मुझे लगता है कि आर्थिक सर्वे की ये बात तो सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए।